Namaskar, we are going to talk about Saturn being into motion. That what does mean is it is coming out from the retrograde in from 18th of November 2024, and till 11th of November 2024 it was in retrograde. What does that mean? That Saturn was running slower, and 11th to 18th was the period when Saturn was almost static. That means it was running at the same space as the Earth is rotating. And now, from 18th of November onwards, Saturn has started rotating in a higher speed than Earth. So, obviously, most of the people, most of us, have faced lot of challenges, stress, and difficulties during the period of 11th to 18th of November. It may not be applicable for each and everyone because astrology is not that simple a rule like born on 1 to ye hoga, born on 2 to wo hoga. It is because of the planetary positions in your birth chart. It also matters what are the dasha periods going on, what are the relationship between one planet to another planet. It is little really complex. Okay, so whatever I am saying might not be 100% applicable to 100% of the population, but having said that, most of us have gone through a lifetime lessons between 11th of November to 18th of November. In the purpose of this video is to take you there and then make you think that what are the lessons you have learned in those particular sector, because शनि देवता शायद हमें वही लेसन दिलाना चाहते थे, and now we have to take our actions according to that so that we should not be facing the similar kind of situation in future. एक एक राशि पे आते हैं. It is about, first one is Aries. That is the first Rashi in the zodiac, where that means the moon is in the Rashi or in the environment of Aries. इनको जो सीख मिला है, you guys need to introspect what has happened in your social circle, what has happened in your friend circle, what has happened with your elder sisters, what has happened in the association wherein you were spending a lot of time. What is the lessons you have learned? And obviously the lessons you have learned might have impacted your health, your mental condition as well. So definitely you have to take care about those. Overall, you might be not getting particularly anything into a professional area because your professional area was having a strong support from planet Jupiter. So until unless आपका कुंडली में सैटर्न अभी दशा पीरियड में ज़्यादा एक्टिव है, दैट मीन्स ज़्यादा पावरफुल है, तो आपको प्रोफेशनल फील्ड में कुछ इम्पैक्ट शायद नहीं मिला होगा, बट सर्टेनली फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपको मिला होगा, अपने हेल्थ के ऊपर मिला होगा. दिस इज एन एग्जाम्पल. आई एम स्पेंडिंग लिटिल मोर टाइम विद एरीज सो दैट आगे का जो राशिज में हम बात करेंगे यही फ्लो होते चलेगा. नाउ मूविंग टू द टॉरस, दैट इज वृषभ राशि. उनके लिए सीख का जाएगा डेफिनेटली हैज कम फ्रॉम द वर्क और द प्रोफेशन और जॉब एरिया. जॉब एरिया में ऐसा क्या हमने किया है जिसके कारण मेरी नींद उड़ी हुई थी, इन ए वेरी कलोकियल वर्ड. ओके, आई हैव डन समथिंग मेसी हैज हैपेंड which was taking my sleep away, which is also impacting my relationship with at home. I lost my work life balance or my peace at home. I kind of got impacted in my relationship with my spouse or others. Okay, so these are the kind of area wherein you need to introspect. So pick up the lessons. कोई एस्ट्रोलॉजर कोई स्टोन पहन के, कोई नंबर चेंज करके, नाम चेंज करके मिराकल होता है. इट इज़ योर बिलीफ सिस्टम. अल्टीमेटली यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड वर्क अलॉन्ग विथ योर माइंड कि मेरा साथ हुआ क्या है, वहाँ से मुझे क्या लेसन पिक करना है, एंड हाउ डू आई काइंड ऑफ रेगुलेट द चेंजेस इन लाइफ. थर्ड राशि इन द जोडियाक इज जेमिनाई. For the Gemini people, definitely you might have got lessons, something from, if your parents are alive, then from parents, or you have gone for a long drive or a long trip, maybe outside your own hometown, own home location. Okay, for example, you are staying in Bangalore and you have gone to maybe Delhi. वहाँ जाके आपको कुछ सीख मिला होगा, and that is the something which is also impacting your relationship overall, your social image, and that is an area wherein you have to think ki what kind of behavior I have done
when I was traveling, what kind of behavior I have done with my father, especially, that has impacted me. So you have to pick your corrective actions from there. Lastly, at the end of this video, I will also talk about some remedies for each one of you so that you can see better time going forward for at least till February, March of the next calendar year. Now coming to the Cancer Rashi, for the Cancerian, definitely you are not going through a very good time. It is very tough time. Saturn was sitting in your 8th house. Saturn आपको हर दिन कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम दिया होगा, मेंटल स्ट्रेस दिया होगा, ऑफिस एरियाज में, प्रोफेशनल एरियाज में भी आपको यू माइट हैव गन थ्रू लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस. ऐसा नहीं कि यू माइट हैव लॉस्ट योर जॉब. आपका जॉब लॉस इज नॉट द ओनली thing, or money is not the only thing which we look for in the profession. We also look for recognition, we also look for a nice environment to work with. ये सारे चीज़ मैं इसलिए इलेबोरेट कर रहा हूँ क्योंकि कैंसर राशि वाले के लिए ये सब चीज़ों में बहुत बड़ा स्ट्रेस गया होगा फॉर लास्ट 6 months. अभी सिचुएशन चेंज होगा 18th November ऑनवर्ड्स, बट हम रेमेडी पार्ट में लास्ट में भी आएंगे. नेक्स्ट कमिंग टू लियो. For the Leo ascendants, I think they have got the biggest lesson of life from their life partners or from their business partners. लड़का हो लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको लेसन मिला होगा how to deal with partners, be it professional partner or your life partner. इनके कारण इनका बहुत सारे कुछ इम्पैक्टेड हुआ है. इनका खुद का हेल्थ, खुद का इमेज इम्पैक्टेड हुआ है, खुद का घर का पीस इम्पैक्टेड हुआ है. हैविंग सेड दैट, इनका खुद का इमेज की जब बात किया, खुद का इमेज टू एन एक्सटेंट और बियॉन्ड ए पॉइंट इमेज को इम्पैक्ट नहीं हुआ है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ जुपिटर इन योर 10th हाउस. इसके कारण आपका इमेज में उतना मार नहीं पड़ेगा, बट डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप पर्टिकुलरली एंड योर कम्युनिकेशन स्टाइल में यू माइट हैव सीन द इम्पैक्ट. Next, moving to Leo will be Virgo. For Virgo also the situation is more about your work area. आपका वर्क एरिया में स्पेशली पीपल हु आर इनटू बिजनेस, ओके, उनका पैसा अटका हुआ था. पीपल हु आर इन प्रोफेशन, उनको लास्ट 6 महीने में अगर इफ यू लुक बैक यू माइट हैव फेस्ड लॉट ऑफ competition, lot of backstabbing from your colleagues and all. ये है लिब्रंस के लिए. और ये जो हुआ है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन एट वर्क प्लेस, बिकॉज ऑफ बैकस्टैबिंग, यू हैव लॉस्ट योर मेंटल पीस. आपका मन की पीड़ा के कारण हो गया है ये सब चीज़ जो ऑफिस में होता हुआ है. एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड योर स्लीपलेसनेस, इट हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड योर कम्युनिकेशन स्टाइल. व्हेन आई एम सेइंग इम्पैक्टेड कम्युनिकेशन स्टाइल, क्या होता है जब भी हम कोई बड़ा स्ट्रेस से जाता है डेफिनेटली हम थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है. मेरा कम्युनिकेशन विद अदर पीपल हु आर इन माई क्लोज सर्कल, उसमें भी इम्पैक्ट आता है. दैट इज़ हाउ यू माइट हैव सीन. आप और बहुत सारे ज्योतिष ना फ्यूचर की बता देते हैं, पास्ट की नहीं बताते हैं, क्योंकि पास्ट की बताएंगे जो भी मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग अपना लाइफ में झांक के देखोगे और आप इमीडिएटली समझ जाओगे कि अरे अरुण गुप्ता जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है. But I can bet on my knowledge and this science that you look back and you will find something where I am talking about. Moving back to Virgo, I think these are the areas wherein you have seen the challenges, but end of the day, you have not kind of faced any job loss, any big challenges or any loss in relationship. That is because आपका ऊपर गुरु का अभी बहुत अच्छा दशा चल रहा है. नॉट दशा चल रहा है, अदृष्टि चल रहा है. इन ट्रांजिट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज दशा देखने के लिए वी हैव टू गो इन इंडिविजुअल चार्ट. आई एम जस्ट गोइंग बाय द ट्रांजिट. फ्रॉम अ ट्रांजिट पर्सपेक्टिव आपका ऊपर गुरु का अच्छा नज़र पड़ा हुआ है. सो देयर विल बी सब बिगड़ते हुए भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ सपोर्ट मिल जाएगा. आपका इनकम में भी बढ़ोतरी दिखेगा कि कोई ना कोई एवेन्यू, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम आपको आएगा. मूविंग फॉरवर्ड टू लिब्रा, दैट इज तुला राशि. तुला राशियों के लिए डेफिनेटली ये जो लव लाइफ का एरिया है दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनको अगर कुछ सीख मिला है तो यही मिला है कि हाउ आई शुड मैनोवर माई लव रिलेशनशिप, माई रोमांटिक रिलेशनशिप. अगर कोई ट्रेडिंग में है तो डेफिनेटली इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर ट्रेडिंग स्टाइल
पैसा मार्केट में अगर लगाया है तो उनको वहाँ से भी सीख मिला है कि मैं कहाँ पे पैसा लगा दे, मेरा पैसा डूब गया। मेरा रिलेशनशिप में भी मे बी दे हैव कमिटेड टू अ पर्सन इन अ रश, ओके, अभी उनको समझ में आ रहा है यार मुझे कमिट नहीं करना चाहिए था, बट उस समय पता नहीं मुझ में क्या हो गया, मैं तो फ्लो में कमिट कर दिया। ये होगा तुला राशियों के साथ, ओके। टू एन एक्सटेंट तुला लगन के साथ भी ये सब चीज़ दिख सकता है। जो भी मैं राशि बोल रहा हूँ, राशि में तो होगा ही होगा, लगन वाले के साथ भी इसका सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट आप देखोगे। नेक्स्ट कमिंग टू द स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि वाले के लिए घर का पीस, घर में जो शांति रहती है वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज होंगे। और ये लोग जो होंगे, वृश्चिक राशि वाले लोग होंगे, आप देखोगे पिछले 6 महीने में अपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर चुके हो, क्योंकि आपको लगता था कि कहीं घूम के आए। उसका रूट कॉज क्या था? क्योंकि घर का जो माहौल था वो वाज नॉट एट ऑल गुड और वेरी सूदिंग फॉर यू। एंड इसके कारण आपका स्पाउस के साथ रिलेशनशिप भी जो भी है, अगर आप बिजनेस हो, आपका बिजनेस रिलेशनशिप भी इम्पैक्टेड हुआ होगा। अगर आपने ट्रैवल कर लिया, जिन वृश्चिक राशि वालों ने घर में घुटनसी हो रही थी और ट्रैवल करने निकल गया, उनको तो राहत मिल गया, दे गॉट देयर ओन रेमेडीज, उनको बचत मिल गया। जो वो नहीं किया, ओके, दे हैव गॉट स्टक। हाँ, जो नहीं किया, कहीं घूमने नहीं निकला, बट दे आर स्टेइंग विद देयर फादर और फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, दे हैव स्पेंड सम टाइम विद देयर फादर, उनके लिए शायद उससे भी थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है। बट otherwise they have had a very tough time at their home, at their business and at their relationship with spouse as well. Spouse के साथ ब्रेकअप नहीं होगा, टू एन एक्सटेंट स्पाउस के साथ एक गार्ड है, कहीं पे एक कवरेज है, उसके कारण वो नहीं होगा, बट डेफिनेटली टाइम वॉज नॉट एंजॉयबल। मूविंग टू धनु राशि या धनु लगन, उनके लिए क्या है? धनु लगन वाले के लिए एफर्ट का जो एरिया है, जो भी एफर्ट उन्होंने लिया है धनु राशि वाले ने, या तो सही एफर्ट नहीं ले पाया और यह एफर्ट का कोई आउटकम ही नहीं मिला होगा 6 महीने में। 10 जनों से बात कर लिया, मैं इधर अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, उधर अप्लाई कर दिया, मैं 10 जनों से अपना एक रोल के लिए मांग रहा हूँ या चेंज के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। बिकॉज दैट वॉज द सिचुएशन टिल 18 नवंबर। अब जितना भी सर पर मार लो, आपका शनि देवता ऐसे जगह में आपको बैठा है कि आपका एफर्ट्स का फल आपको नहीं दे रहा था। इसका मतलब, am I blaming शनि देवता as a planet? Of course not. We are saying that maybe शनि देवता was expecting you to put more and more effort. That was the lesson they wanted to give. और आपने कम्युनिकेशन भी जहां पर भी किया है, जहां पे आपको कम्युनिकेशन करना था, हाँ वहां जाके आपने कम्युनिकेट किया होगा ना, ओके। मतलब आपका मन में कुछ था, आपने बोलते समय उल्टा बोला, आपको मन की बात आपने बोल नहीं पाया, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपका पास कोई ऑफर आया, आपको वो करना नहीं था, आपने उसी को हाँ किया, और या तो करना था लेकिन आपने हिम्मत करके वो काम, कोई भी काम आपको करना था, आपने सोच के रखा था बहुत दिनों से यही काम मुझे करना है, मुझे ऐसे ही करना है, लेकिन जब वक्त आया था उस समय आप वो काम नहीं कर पाया, आप अपने मुंह से उसके लिए कमिट नहीं कर पाया। यही आपके लिए सबसे बड़ा एक पेन का टाइम था, और आपने ये चीज़ के कारण आपका रोमांटिक लाइफ को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है, और आपका इसके साथ आपका जो टू एन एक्सटेंट लक को भी आपने इम्पैक्ट कर लिया है। हैविंग सेड दैट, वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट पास्ट। आप कुछ कर नहीं सकते हो, प्लैनेट आपसे ये जो कराना था कराया है, अभी आगे जाके यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज एटलीस्ट टिल जनवरी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ों को महसूस कर रहे हो कि मेरे से क्या गलती हुआ है, एंड यू आर नॉट मेंटली स्टेबल एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो पर्टिकुलरली while ड्राइविंग एंड डूइंग थिंग्स लाइक दैट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी अनमाइंडफुल, ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना घटे। आप अपने आप को कंट्रोल में रखो। दैट इज़ द पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सो दैट आफ्टर जनवरी व्हेन थिंग्स विल लिटिल स्टार्ट गेटिंग इन योर कंट्रोल, आप अपने आप को संभाल लोगे। अगर आप अभी भी ये सब चीज़ में अपना जैसे यू हैव सपोज टू ड्राइव, इफ यू कैन ड्राइव इट इन दैट फैशन। मूविंग टू द नेक्स्ट राशि, मकर राशि। मकर राशि वाले के लिए डेफिनेटली उनको फैमिली के प्रति बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना था।
अगर फैमिली के लिए घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें लिए होंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आगे अच्छा आएगा. बट डेफिनेटली देयर वाज अ चैलेंजिंग सिनेरियो वेर इन द पर्सन मे नॉट हैव टेकन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द होम. शायद वो ऑफिस के काम पे बिजी थे, शायद वो कुछ और कमिटमेंट में बिजी थे और वो नहीं कर पाया. In that case, definitely there will be an impact which we are expecting to see in the health of the wife or with their in-laws. ऐसा कुछ उनके साथ एरियाज में दिक्कतें होंगे. इवन इन गेटिंग द रिजल्ट्स, अगर आपने देखो ये एवरीथिंग इज लिंक्ड इन दिस यूनिवर्स. ओके, हम जब यूनिवर्स बोलते हैं ना, सब एक धागे में बांधे हुए है, सब अपने ही पैटर्न में घूम रहा है. तो अगर ये इंसान, मैं मकर राशि वाले के लिए बोल रहा हूँ, अगर अपने माँ के प्रति, अगर अपने घर के प्रति अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया होगा तो डेफिनेटली उनका जो इच्छा पूर्ति है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात है, उनको एक प्रमोशन वेट कर रहा है, वो भी डिले हो जाएगा. दैट इज हाउ नाइसली इट हैज़ बीन वेल नीटेड इन एस्ट्रोलॉजी. कमिंग टू द कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वाले के लिए क्या होगा, उनको ना सेल्फ एंड अगेन राशि लगन आप कहीं पे भी सेट करो, चीज़ों को मिलता ही होगा. कुंभ लगन या कुंभ राशि वाले के लिए चीज़ ऐसा होता है कि उन्होंने काम कुछ ऐसा कर देगा जिसके कारण उनको खुद को झुकना पड़ेगा. द पर्सन विल गेट डिफेम्ड. ओके, उनका ऊपर लोग उंगली उठाने लगेंगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो. उन्होंने काम ऐसा कुछ कर देगा, चाहे वो इंटेंशनली करे, अनइंटेंशनली करे, उनका नियत चाहे जैसा हो, वो काम कुछ ऐसा होगा जिसके कारण ये सिचुएशन आएगा. एंड ये सिचुएशन जब आएगा, इफ द पर्सन स्टिल कैनॉट स्टैंड स्ट्रांग एंड कम्युनिकेट वेल, देन डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट हिज पब्लिक इमेज. ठीक है, जब उनके साथ उनके ऊपर जब उंगली उठ रहा था, अगर पर्सन फिर भी विचलित ना हो के, इफ द पर्सन कुड हैव गॉट अ होल्ड ऑफ इट एंड नॉट गॉट कैरिड अवे एंड टुक द a firm decision, good or bad वो future might tell, but एक जगह पे वो अगर अरे रह के, खड़ा रह के एक डिसीजन लिया होगा तो उनका पब्लिक इमेज जो है बच जाएगा. अगर नहीं ले पाया होगा, अगर कोई दवा में आके उन्होंने इमोशनली अगर कोई हड़बड़ी में कोई डिसीजन लिया होगा तो डेफिनेटली उनका पब्लिक इमेज उसका कारण बहुत इम्पैक्ट होगा. बोलता है ना घर का ना घाट का हो जाएगा. अभी वो खुश है नहीं खुश है अलग बात है, बट डेफिनेटली अगर एक स्टैंड लिया होगा तो उनका पब्लिक इमेज बच जाएगा. द अदर थिंग फॉर दिस पर्सन ऑफ कुंभ लगन इज दैट इनके जो खर्चे हैं, डेफिनेटली इनका खर्चा बहुत ज़्यादा हाई होगा इन पीरियड में, और ये चलता रहेगा. अभी अगले 6 महीने तक भी इनका खर्चा बहुत हाई होगा. और खर्चे से कोई ऐसा मतलब नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि 10 लाख खर्च करके घर ले लिया, ऐसा नहीं है. खर्चा जो होगा फिजूल खर्चे होंगे. ओके, मूविंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि या मीन लगन वाले के लिए, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था सबसे बड़ा था इज अबाउट देयर हेल्थ, देयर ओन इवोल्यूशन ऑफ थॉट प्रोसेस. ओके, जो मीन राशि वाले हैं या मीन लगन वाले हैं, उनके लिए ये टाइम उनको एक मोक्ष के तरफ मूव करने के लिए पुश करेगा. उनको बोलेगा यार बहुत हो गया ये मोह माया, ये प्यार, ये पैसा, यू हैव टू इवॉल्व. इनको ये सब चीज़ को ऊपर आना है. अगर वो इंसान ये सब चीज़ को ऊपर आके कोई कर्म कर लिया होगा, ओके, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, वही रिश्ते में, वही कर्म में, वही पुराने चीज़ों में अगर घुस गया होगा वापस से, तो ये इंसान को फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होगा. अगर ये सिचुएशन उनको जो जगह पे आके खड़ा कर दिया कि हाँ कुछ सीख मिल रहा है, कुछ तुमको सिखा दिया है, अभी तुम ये मोह माया से थोड़ा दूर हो जाओ, खुद को इवॉल्व करो एंड गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर इन यू स्टार्ट वॉकिंग द पाथ ऑफ लिटिल बिट ऑफ मोक्षा. आई नो ये हर एज के लिए है, हर एज का इंसान तो मोक्ष में बिलीव नहीं कर सकता है, बट पर्टिकुलरली पीपल हु आर 30 एंड अबव, उनके लिए अगर थोड़ा सा भी मटेरियलिज्म को छोड़ के, मटेरियलिज्म मतलब घर की सुख, संसार की सुख, पैसा की सुख, ये सब चीज़ को छोड़ के अगर थोड़ा सा खुद को इवॉल्व नहीं कर पाएगा तो उनके आगे भी दिक्कत आएंगे. एट द सेम टाइम व्हाट आई एम सेइंग इज दिस पीपल वेर हैविंग लॉट ऑफ गुड सपोर्ट फ्रॉम जुपिटर इन देयर 7th हाउस. उसका मतलब क्या है कि जितना भी उनका लाइफ में स्ट्रेस आएगा, बहुत सारा स्ट्रेस से जाएगा मीन लगन या मीन राशि वाला लोग, लेकिन उनके स्पाउस
उनके साथ खड़ा हो जाएगा, उनको सपोर्ट दे देगा। चाहे स्पाउस एज ए पर्सन, उस स्पाउस को हम जज अगर करेंगे, किसी को तो जज करना नहीं चाहिए, अगर मैं कुछ स्पाउस को अलग से जज भी करूँ, हो सकता है दैट मैन और वुमन माइट नॉट बी अ ग्रेट पर्सनैलिटी और ग्रेट पर्सन इन देयर माइंड, लेकिन प्लैनेट अभी ऐसा सिचुएशन में है, प्लैनेट उनके स्पाउस से ऐसा करा देगा कि उसके स्पाउस उनको सपोर्ट कर देगा, चाहे जो भी हालत में वो इंसान हो, उन प्लैनेट उनके स्पाउस के थ्रू आके उनको हेल्प करेगा। ओके, एंड हमें अपेरेंटली लगता है कि स्पाउस इज अ ग्रेट पर्सन और ग्रेट वुमन और ग्रेट पार्टनर, विच इज़ ओके, इट इज़ गुड फॉर अस टू थिंक लाइक दैट, बट एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा नहीं सोचेंगे। एस्ट्रोलॉजर ये सोचेंगे उनका शादी वाला रिश्ता बच जाएगा एंड उनका स्पाउस के थ्रू आके ऊपर वाला उनको हेल्प कर देगा टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। दैट इज अबाउट ऑल द राशिज विच वी कवर्ड। वी कम टू द remedy part. As I was saying, that the remedy part is to kind of be very dutiful to the respective areas wherein I have spoken. देखो, राशि का सिचुएशन कुछ बदले नहीं है, पहले वो मार्गी था, अभी वो रेट्रोस्पेक्टिव, सॉरी इंग्लिश में बोलो तो रेट्रोस्पेक्टिव था, अभी रेट्रोस्पेक्टिव से रेट्रोग्रेड था, रेट्रोग्रेड से वो अभी मूवमेंट में आ गया। सो यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट। जहाँ जहाँ पे आपको पेन मिला है, हर एक जगह पे ही आपको पॉजिटिव मिलता जाएगा। जो जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में आपको पेन मिला है, वो सब एरिया में आपको, जैसा मैंने बोला पूरा वीडियो में, वैसा आप काम को अगर थोड़ा सा रेगुलेट करो तो यू विल स्टार्ट टू गेट लॉट एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम दोज एरियाज। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, सबका जीवन मंगलमय हो, एंड हैव ए ग्रेट न्यू ईयर कमिंग। आई विल कम अप विद द न्यू ईयर वीडियोज एज वेल, एंड जनवरी में मंगल भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो बहुत सारा कुछ चेंजेस होंगे, and I hope it will be good for all of us. Thank you.